अलग अलग सीरीज़ में से कुछ फोटोग्राफ निकाले और उसमें से लगा कि ये अच्छा एक थीम में बैठ सकता है, तो फिर नाम सोचा तो मुझे लगा चेहरे अच्छा नाम है। ये જે વ્યક્તિત્વ નક્કી થાય છે એ શેના ઉપર નક્કી થાય છે? તો સ્વભાવ ઉપર નક્કી થાય છે। તો કોઈ પણ વ્યક્તિત્વ નક્કી થાય તમારું કે તમારું કેવું વ્યક્તિત્વ છે એ તમારા સ્વભાવ ઉપરથી નક્કી થાય કે આમનું વ્યક્તિત્વ આ કોઈને સાંભળે નહીં, એટલે તમારો સ્વભાવ એવો છે કે તમે કોઈને સાંભળો નહીં, બરાબર છે? તમારા સ્વભાવ ઉપરથી, અને તમારો સ્વભાવ તમારી અંદર હોય, એ બહાર ના હોય, એ આકારોમાં ના હોય, એ નિરાકાર સ્વરૂપે જ હોય, પણ એ વ્યક્ત આકાર રૂપે થતો હોય પાછું બહાર તમારો સ્વભાવ છે। એટલે અહીંયા જે છે આ મારવાડી બહેરાઓની બેસવાની જે રીત છે, અંદર ઘૂસી બેસવાની, એ આ એનો પોર્ટ્રેટ છે, આ કોઈનો પોર્ટ્રેટ છે જ નહીં। ઓકે, આ એક શૈલીનો પોર્ટ્રેટ છે, એક શૈલીનો, જીવન શૈલીનો પોર્ટ્રેટ છે। વાહ, અમે લોકો આવ્યા ત્યારથી હું મૂંઝવણમાં હતો કે મને આ એક્ઝિબિશનને છે ને કંઈક બધું યુટ્યુબ છે એટલે બ્લોગ કરવો એ મારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બેસતો નથી, એટલે હું મૂંઝવણ વ્યક્ત કરતો હતો કુલદીપ પાસે। મેં કીધું યાર મારે છે ને કંઈક અલગ રીતે જ કરવું છે, અલગ રીતે જ કરવું છે, ભગવાને સાંભળી લીધું। સર, તમને કઈ ઇમેજ ગમી, તમારી મનગમતી ઇમેજ? મને જે ગમી છે ને એ આ લોકોને કોઈ ગમી નથી। ઓકે, મને છેલ્લો ફોટો ગમ્યો, સામેનો ફોટો છે ને, ઓકે, અને મેં એનું કારણ આપે, મેં કહ્યું પહેલું તો આનું જે દર્દ છે, વેદના છે, એનો બાપ ગુમાવ્યો છે, મા ગુમાવી છે, એ વિશ્વ ખબર પડે છે કોઈક વ્યક્તિ આને ગુમાવી છે, આ માણસ, અને એનું જે દર્દ છે એ એના ફેસને જોયા વગર બેકથી જોઈએ છે તો એના આગળના ભાવો ખબર પડે છે કે એ જે સુખી દુઃખી છે, એ જે વેદના છે, એના આંસુ કદાચ હમણાં જ પૂછ્યા હશે, એ પણ તમને ખબર, આગળ હસતો હશે એવું તમે ખાતરીથી ના કહી શકો કે આ છોકરો આગળથી હસતો હશે। એટલે આ જે દુઃખ દેખાય છે, અને એ દુઃખને એ એવું દુઃખ હશે કે જેને દરિયો પણ એને વોશ આઉટ નથી કરી શકતો। એટલે આ જે વાત કહેવાની તાકાત છે માત્ર ફોટોગ્રાફીમાં છે, કોઈ મીડિયામાં આ તાકાત નથી કે જે તમે અનુભવો છો એને એટલી હદે કે દર વખતે શબ્દો ઓછા પડે, એવરી ટાઈમ શબ્દો ઓછા પડે, એવું ખાલી ફોટોગ્રાફીમાં જ થાય કે તમે ગમે એટલા શબ્દો વાપરો પણ પડે ઓછા, તમે થાય કે હજી આનાથી કંઈક મારે આગળ કેવું છે, હજી મારે આગળ કેવું છે, એટલે વ્યક્ત કરવા છતાં એ અવ્યક્ત અંદર મનમાં રહ્યા જ કરે, એ આપણે અસ્પષ્ટતા નથી, પણ એ સ્પષ્ટતાનું ઊંડાણ છે ખરેખર। એટલે સાવ સાદી વાત હોય અને એમાં તમે જો ગંભીરતા અનુભવી શકતા હોય, માંથી નાનો અક્ષર કયો અને માંથી વધારે મોટી ફિલિંગ કયા શબ્દ, એની જે વાત છે। એટલે ફોટોગ્રાફી એ અભિવ્યક્તિની કળા છે, યસ, અને અભિવ્યક્તિ તો જ થાય જો તમે અનુભવતા હો, અને અનુભવતા તો જ હો કે જો તમે તમારામાં સંવેદના હોય, અને સંવેદના તો હોય કે તમે સંવેદના શું છે એ જાણતા હોય, એટલા માટે વાંચન જરૂરી ફોટોગ્રાફી। યસ, ફોટોગ્રાફર માટે એટલે વાંચન જરૂરી, એને ખબર પડે કે સંવેદના કોને કહેવાય, અને ડેપ્થ પણ આવે, એટલે ડેપ્થ આવે, એને ખબર પડે કે ઓહો કે
કે સારું આમ કે લેખકોએ લખ્યું હોય તો એમ થાય કે આ વસ્તુ આપણે જોઈએ પણ ત્યાં આટલું દુઃખ થાય તો આપણે કલ્પના નહીં કે બીજા કોઈનો છોકરો પડતો જોઈએ અને એનો પોતાનો છોકરો મરી ગયો યાદ આવે એટલે તો આપણે કલ્પના જ નથી એ વાંચી તરફ અને કોઈ પણ વસ્તુનો અર્થઘટન તમારી જીવનમાં બનેલા અનુભવના આધારે તમે અર્થઘટન કરતો આ નિયમ છે. અર્થનો આધાર અનુભવ છે. સર, આજે આપણી આકસ્મિક રીતે ભેટ થઈ ગઈ અને મેં તમને કીધું કે હું આવતો હતો ત્યારે મેં ઘણી બધી પૂછણાથી કીધી આજે હું આ એક્ઝિબિશનને કેવી રીતે જોઉં, કારણ કે તમને ખબર છે મારી એક્ઝેક્ટ માનસિક પોઝિશન, હું આવવાની કોઈ ગુંજાઈશ જ નથી મમ્મીને બધા. એટલે મને તો એમ લાગે છે કે આ મારા માટે અને આપણા જે ભાઈ બંધુઓ છે એના માટે આ એક અવસર છે. તમે અમને અવસર પ્રદાન કર્યું છે, વિવેકભાઈ અને તમે. તો હજી મને તમે થોડુંક ડિસ્ક્રાઇબ કરો પોર્ટ્રેટ વિશે, જેમ કે વિવેકભાઈ વિશે. આ પિક્ચર છે તો આ પોર્ટ્રેટ છે પણ આ કચ્છની ગ્રામ્ય કન્યાનો પોર્ટ્રેટ નથી. ઓકે. આ સ્ત્રીના સ્વભાવનો પોર્ટ્રેટ છે કે એ ગમે ગામડાની ગમે ત્યાંની પણ એની અંદર એને એક સપના હોય પુરુષો કે આવો પુરુષ જે એક્ટર્સને જે પાસે એક્ટર બતાવ્યા છે એક્ટર્સને હંમેશા આપણે આદર્શ તરીકે લેતા હોય છે કે એ જે ઝંખના છે એ ઝંખના પાછળ વ્યક્ત થાય છે. એટલે અહીંયા પાછળ ધારો સ્ત્રીના જ ફોટા આવતા આ ફોટાને કોઈ વેલ્યુ નથી. અહીંયા પુરુષ છે ને પાછળ સ્ત્રીઓ છે માટે આ જે છે એટલે આ સ્ત્રીની ઝંખનાનો પોર્ટ્રેટ છે. આ પુરુષની ઈચ્છાઓ આ જે છે એટલે આમાં જે એમ કે તો પછી તો તમે એમ કહો કે આ માણસ અંદર સજ્જન કેવી રીતે કહો, પણ સજ્જનતા ના સજ્જનતા એ વ્યવહાર ઉપર આધાર નથી, વિચાર ઉપર નહીં. એનો વ્યવહાર કોઈ ખોટો નહીં હોય. એને ખબર છે કે આ વ્યવહાર મને શોભે નહીં. માણસ વિચારી ના શકે તો મૂઠો હોય, પણ વિચારને મારે ક્યાં ઇમ્પ્લિકેશન કરવું એ વિવેક છે. બીજી સર તમારી ગમતી ઇમેજ? ગમતો આ બધાને મેં જે સમજાયું એટલે આ સુનિલને આ ફોટો કે આ ડિસ્ટન્સ એટલે એને મેં પૂછ્યું તો કઈ તો કે આખી જે કરુણાવાળું વાતાવરણ છે ને એમ કે તમે ત્યાં ઊભા ના રહી શકો, એમ થાય કે ત્યાં જાઓ એટલે કપાતા હોય કરતા હોય આ ખડકું છે એ આખું વાતાવરણ અંદર આવ્યું છે. એટલે ટૂંકમાં આ એન્વાયરમેન્ટનો પોર્ટ્રેટ છે. પછી એ એન્વાયરમેન્ટ કેટલી હદે આમાં એવું છે કે એન્વાયરમેન્ટ આપણે એવું માનતા કે પણ ત્યાં છે ને કે એન્વાયરમેન્ટ આટલું જ હતું, આનાથી વધારે હતું જ નહીં, મારે વધારે લેવું તો હતું એવું ના હોય. તમે ફીલ ઓછું કર્યું છે ઓકે તો જ ફોટામાં ઓછું આવે. ઘટનાને એને કોઈ લેવા દેવા જ નથી. તમે જેટલું અનુભવો છો એટલું સામે અભિવ્યક્ત થતું. એટલે એમ એક બાઈ મૂંઝાની બેઠી હોય જો તમે એની વેદના સમજતા હો તો તમારા આંખમાં પાણી આવવા માંડી જાય આ બાઈને કેવું દુઃખ હશે, કારણ કે તમે અનુભવો છો. એને તમને કશું કીધું જ નથી હું દુઃખી છું સુખી છું. આ તો પછી બધા તો મને એમનામાં એવું થઈ ગયું કે આ બધા આ વખતે મેં થોડું જુદું છે. વોટર કલરની ફિલિંગ કેવી હોય એવી ફિલિંગ વધારે છે. વોટર કલરના આર્ટિસ્ટ ડ્રોઈંગના મેં કહું મને આ તમારા ફોટો જોઈ મને સોમાલા શાહ યાદ આવ્યા કે સોમાલા શાહ એટલે કે આ તમારે આખી એટલે તમારા અત્યારે બધા જ ફોટા મને સ્ટેજના ફોટા લાગે છે. જીવન એક નાટ્ય મંચ છે, તમે બધા આવી જતા રહો છો પોતાના પાત્રો ભજવું. આટલા દિવસ મેં તમારા ફોટો છે એ બધા મને જર્નલિઝમ દેખાતું. આ વખતે તો એક જુદી વસ્તુ દેખાડે છે કે રંગમંચ જીવન એક રંગમંચ છે. બધા પછી બધા આ એમને સરસ કીધું કે એક વાક્ય એને એવું કીધું કે જેણે ઝવેરચંદ મેઘાણીને વાંચ્યા હોય એ આ પોતાના સમજી શકે કીધું. અને એ વાત બહુ સરસ છે કે ઝવેરચંદ મેઘાણીની અંદર જે પાત્રોનું વર્ણન આવે ત્યારે એ આવું જ પાત્ર બેઠો પણ એટલે એને કશું ના આવે પણ એનો જે જુસ્સો એનો જોવું એની વાતોમાં એને અને એ જે વર્ણન કર્યું એનું વર્ણન કરતા મને કંઈક ઊભું થાય. આમાં એને કપડાં નથી પહેર્યા પણ એનો જે પોતાનો ઠસ્સો છે જુસ્સો છે એટલે એમ કે ઝવેરચંદ મેઘાણીનું વર્ણન હોય એ વાંચ્યું હોય તો જ આ ફોટાને એન્જોય કરી શકે.
आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगती मुझे ये वाली वो वाली कौन सी एक ये अच्छा, ये खाली ये मुझे बताओ, ये आपको अच्छा क्यों लगा? ये वाला ऐसे अगर ये वीडियो होती तो एकदम ऐसे शांत ऐसे। बराबर। और वाला वैसे ये है ना, मैं पहले बता दूँ, ये बैन बहुत ही फेमस है यहाँ। यानी इन्होंने सेवा के इतने सारे यहाँ पर सेवा संकुल खोला हुआ है। यानी ये इन्होंने, ये है बहुत अमीर घर की भाई, इन्होंने लोगों के लिए बहुत सेवा की। तो वो अपने आप को एक सामान्य ગુજરાતી સમજીશ ને તો મને હિન્દી વાળો છો પડશે એ રીતે જીવે ને એવી રીતે જીવતી આ બહુ જ મોટું પાત્ર છે. પણ જે જીવે છે એમાં તમને એવું લાગે કે સામાન્ય ઘરની કોઈ મદદ છે. ઇવન ત્યાં સુધી કે એ જે રસ નાખે છે એમાં એવું લાગે કે કોઈ સામાન્ય ક્રિયા કરે છે. એ જે સામાન્યપણું વિશેષ વ્યક્તિમાં દેખાય છે એ બહુ મોટી વાત છે. સેવા નામની સંસ્થા બધી આપણે સ્થાપેલી છે. ઓકે સેવા સંસ્થા, ઈલાબેન. સેવા બેટા એવી જ સંસ્થા છે કે એ લોકોએ ત્યાં એક જગ્યા રાખી છે, એમાં 8-10 ટેબલ ગોઠવે છે. એટલે કોઈને પણ કોઈ ચર્ચા કરવી હોય તો જગ્યા શહેરમાં મળતી નથી, તો એ લોકો તમને જગ્યા આપે કે તમે અહીંયા તમે ચર્ચા કરી શકો છો ચર્ચા, અને એનો કોઈ પૈસો નહીં. પછી એ લોકો તે રસોઈ કરતા હોય એમાં લખ્યું હોય કે આજે દાળ ઢોકળી બનાવી છે એટલું લખેલું હોય, તો તમે કહી શકો કે 10 દાળ ઢોકળી આપો, હોય તો આપે, ના હોય તો કઈ ખલાસ થઈ ગઈ છે. અને એનો કોઈ ભાવ કશું જ નહીં. છેલ્લે એક તમારી પર તમને કોરા કવર આપે તમને. તમારે જો એમાં પૈસા મૂકવા હોય તો મૂકો, ના મૂકવા હોય તોય કંઈ વાંધો નહીં, તમે જઈ શકો છો. અને એનો કોઈ ભાવ નહીં, એટલે કે તમારે જે મૂકવાય, 5 રૂપિયા મૂકવાય, 500 રૂપિયા મૂકવાય, તમારી ઈચ્છા. પછી ગયા અઠવાડિયે કેટલા લોકોએ કેટલા પૈસા મૂક્યા હતા, કેટલો ખર્ચો થયો, કેટલા બચ્યા, એનો સામે હિસાબ લખેલો પડ્યો. આને મૂળ જે ગમે છે ને એ રિયાલિટી ક્રિએટ કરે છે ને, એ આ પિક્ચર્સ ગમે છે. કે એને એમ થાય કે આ દ્રશ્ય તો મારી સામે જ હોય એવું મને લાગે છે. એટલે એને 3D ગમે છે. આ પેલા ગીત છે હા, એ સિસ્ટરના પાડોશી છે. અચ્છા બેન છે. કે પેલા ડાન્સર છે. હા હા તો એ એમ આટલી ઉંમર પણ છે તો આમ તમે એમ વિચારો, તમે ખ્યાલ આવે કે પગમાં અત્યારે આમ થીરકન જેવું ફીલ થતું હોય ને, એ વસ્તુ આ તો એમણે કીધી, એ વસ્તુ એમને ફીલ થઈ જાય, એમના માટે થઈ જાય. આમાં એમનો જે આત્મવિશ્વાસ છે ને એ સારો આ ઉંમર સાથે એવો ને એવો અકબંધ દેખાય છે. જે ત્યારે એ અહીંયા આવ્યા હતા નહેરુ સાથે પરણવાની એમની ઈચ્છા બહુ હતી, પછી એ શક્ય નહોતું બન્યું, એટલે પછી સારા ભાઈ મેરેજ કરીને મને આ પિક્ચર બહુ ગમે છે. મોરારી બાપુને મેં બહુ બધા ફોટા જોયા છે, મેં પોતે પાડ્યો છે, અને મને એમ હતું કે મેં સૌથી સારો ફોટો પાડ્યો. પણ આ જે એવું લાગે કે ના, આમાં મોરારી બાપુ, મને મોરારી બાપુની છાપ એવી છે કે એ જે ભાવના છે એ પ્રયત્ન સાથે ન છે, પણ અંદરથી આવે છે. ભલે હોય પ્રયત્ન સાથે ના, પણ એ અંદરથી એ આમાં અકબંધ બધી વસ્તુ આમ દેખાય. તમને એમ એવું લાગે કે એ આવ્યા કરે છે એવું નથી, એ લાવે છે મીન્સ એફર્ટ છે મીન્સ કે એ વસ્તુને એ સાધના માને છે, જે બોલે છે. સાચું ખોટું એ બધી વ્યક્તિગત વાત છે. બસ બાકી બધા એ વાત સર્કસના એને આ મ્યુઝિશિયનની સિરીઝ છે એમાંથી લીધેલા છે. આ પિક્ચર બહુ ગમ્યું. આ બે બહુ ગમ્યા. અહીંયા મેં એમને એવું કીધેલું કે આમાં જો ફ્લેશ માર્યો તો આ પિક્ચર પતી ગયું. એટલે સારામાં સારી રીતે તમે કોમર્શિયલી આ જ લાઇટિંગ બધું બેલેન્સ કરીને કર્યું તોય પિક્ચર પતી ગયો. કારણ કે આમાં કેવું લાગે છે કે આ છે તો પડદાનું ઘર, પણ આ પોતાનું માને છે એ ફિલિંગ બહુ જ સરસ છે. અને એનું કારણ લાઇટિંગ છે. લાઇટિંગ કોઈને ભેદભાવ નથી કરતી, એક સરખું બને પાડવા. અને આમાં જે ઝંખના આવે ને, અહીંયા ઝંખના છે, અહીંયા ઝંખના દેખાય છે, અહીંયા ઝંખના દેખાય છે, અહીંયા ઝંખના દેખાય છે. આખી ઝંખનાની આમ સિરીઝ ચાલે છે. પ્યાર નહીં કરતા ચાલો મળી ચલો ભાઈના અંગત મિત્રો મારા આ અને કચ્છ
કચ્છ વિવેકે જોયું હોય તો એમાં સૌથી મોટો ફાળો આવો બધા ફરીથી મળી. આ અમારા મારવાડી આ તો આપણે વાત સાહેબના ને મારા જન્મદિવસમાં પણ ઘણી બધી સમાનતાઓ છે. પછી મારા ભાવનગર સાથે મારું નાનાનું ભાવનગર છે એટલે સાહેબનું પણ ઘણું ભાવનગરથી નજીક છે. અને એ મને સાફ સાફ કેના સદા સુપીરિયર ને એને બી એવું છે સાફ સાફ કેના સદા સુપીરિયર. चलो बढ़िया सर. चलो आज विवेक भाई का एग्जीबिशन शुरू हो रहा है और एग्जीबिशन का थीम है चेहरे. और मेरे लिए एक दिव्य अवसर है कि विवेक भाई के साथ ही उनका एग्जीबिशन देखने का एक दुर्लभ कहें या बहुमूल्य अवसर कहें वो प्राप्त हो रहा है. विवेक भाई आप चेहरे को भी एक्सप्लेन करें और इससे रिलेटेड कुछ आपके संस्मरण भी बताएं. आपका जो दिल करे वो कहें. चेहरे हम तो ऐसे तो मैंने पिछले 2 साल से यहाँ पे गैलरी एग्जीबिशन कुछ हो नहीं रहा था जी. गैलरी खाली थी और कुछ एग्जीबिशन अच्छे एग्जीबिशन से स्टार्टिंग हो ऐसा हमारे स्टाफ और ट्रस्टीज वगैरह लोगों की इच्छा थी. तो मैंने कहा कि चलो हम ही कुछ करते हैं. तो उसमें से काफ़ी सारे एग्जीबिशन तो मेरे हो चुके हैं जैसे बनारस पे है, कच्छ पे है. तो मुझे लगा कि इस बार पोर्ट्रेट क्योंकि मैं जब पुरानी मेरी नेगेटिव्स देखता था तो और डिजिटल वर्क भी देखता था तो मुझे लगता था कि ये कुछ पोर्ट्रेट बहुत अच्छे मेरे पास है जो अभी तक क्योंकि थीम बेस्ड एग्जीबिशन में तो वो आते नहीं है चेहरे. तो अलग अलग सीरीज़ में से कुछ फोटोग्राफ निकाले और उसमें से लगा कि अच्छा एक थीम में बैठ सकता है. तो फिर नाम सोचा तो मुझे लगा चेहरे अच्छा नाम है और अलग अलग फेसेस नॉट ओनली फेसेस पोर्ट्रेट इज़ नॉट अबाउट फेसेस ओनली बट जो अंदर के इमोशंस हैं जो जी. जैसे रिफ्लेक्ट हो उस तरह का कुछ फोटोग्राफ निकाले अलग अलग तरह के पोर्ट्रेट निकाले तो लोगों को अच्छा लगेगा. इस तरह से मैंने ये एग्जीबिशन स्टार्ट किया. यहाँ पे टेक्स्ट जो मुझे मैं मेरी जो थीम है उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा भी है. आप यहाँ पढ़ भी सकते हो जी. इंग्लिश में भी है. इस तरह से ये एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ किया. ये कच्छ जो मेरा पहला प्रेम है जी. वहाँ से ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर वाला जो एक गांव आता है जहाँ पे एक डेजर्ट में से होके फिर दूसरी तरफ जाया जाता है. मुझे नाम याद नहीं है. वहाँ का ये है. बहुत अच्छा लगा फीलिंग. नहीं मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि कच्छ के सत्य आर्ट गैलरी नवजीवन के अंदर एक आर्ट गैलरी के अंदर विवेक भाई का एग्जीबिशन स्टार्ट होता है और उस एग्जीबिशन के स्टार्ट होते ही जो डिस्क्रिप्शन लिखा है चेहरा जो थीम है चेहरे उसके ऊपर लिखने के बाद जो फर्स्ट इमेज है वो विवेक भाई की कच्छ की इमेज है. तो कच्छ विवेक भाई और कच्छ ये एक ही बात है. तो इस एग्जीबिशन का शुभारंभ भी कच्छ से हो रहा है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम सब कच्छियों के लिए ये गर्व का पल है. बाकी तो सब जैसे जिन जिन जगह पे मैंने काम किया जैसे छत्तीसगढ़ रामनामी कम्युनिटी है जी. तो पूरे बॉडी पे राम नाम लिखा हुआ. आप मुझसे पूछ रहे थे ना कल कि इसमें ये इतने सारे टैटू क्या हैं. तो देखो सब जगह राम नाम. ये एक पूरी कम्युनिटी है जो अपने बॉडी पे इस टाइप के टैटू करवाती है. वो छत्तीसगढ़ में है. Okay. अभी तो बहुत कम बचे हैं क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं यंग जनरेशन तो वो क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होता है अच्छा. होने लगा तो इसके कारण वो लोग अभी न्यू जनरेशन वाले जो लोग हैं हमारे उम्र के लोग हैं वो लोग अभी नहीं करवाते. खाली नाम के राम यहाँ पे लिखवा देते हैं. तो ये रामनामी कम्युनिटी वेरी पॉपुलर. कुछ लोगों ने एक्सप्लोर किया था फॉरेन फोटोग्राफर्स ने उसके बाद और बहुत स्कैटर्ड है. एक जगह पे नहीं है. एक 25 किलोमीटर के दूसरा और इलाका बहुत ही डेंजरस है. नक्सलिस्ट वाला इलाका है तो लोग ज़्यादा कम जाना पसंद करते हैं.
तो इस तरह से ये डांग है जैसे गुजरात का जी हमारा, तो डांग की तस्वीर ये है साउथ गुजरात। तो अलग अलग जगह के अलग अलग जिन जिन जगहों पे मैंने काम किया उसका एक मेमोरी मेरे लिए, मेरी खुद की मेमोरी और उनके साथ लोगों को भी पसंद आया, इस तरह से मैंने इसको एक्सप्लोर किया है। ये भी Again, ये कच्छ कच्छ की मैंने। हाँ। तो I think लुडिया नहीं लुडिया नहीं है, ओके आई थिंक भिरंडिया है। अच्छा हाँ भिरंडिया है। तो उस टाइम जो इलेक्शन टाइम था तो लोग ऐसे ऐसे मास्क किसी ने बांटे होंगे तो ये पहन पहन घूम रहे थे। कच्छ, बन्नी और भिरंडिया, उसके साथ मेरे कई ऐसे संस्मरण हैं जो मैं एक संस्मरण अभी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। विवेक भाई जब भी अहमदाबाद से आते तो कुछ खाखरे, कुछ भाखरावड़ी और एक ट्राय टाइप की एक क्या कहते हैं भाखरी लाते थे। हाँ। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5-1 बजे के करीब करीब हम लोग भूज से निकलते थे और भिरंडियारा पहुंचने के बाद एक रोड पे एक काका थे जो चाय बनाते थे और साइड में मावा बनता था उनके यहाँ, और वहाँ हम करते थे ब्रेकफास्ट। बिल्कुल। और वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद वेलजी भाई थे जो अभी थोड़े टाइम पहले एक्सपायर हुए, उनके यहाँ जाना। और दोपहर में जब खाने का टाइम होता था, जब खावड़ा बिल्कुल छोटा टाउन हुआ करता था और खावड़ा में एक छोटी सी लॉज हुआ करती थी, जिस लॉज में बैठ के नीचे खाना खाया जाता और खाने का मेनू रहता था सेव टमाटर की सब्जी और रोटी और दही की कटोरी, इतना ही होता था। लेकिन उसमें इतना संतोष था और इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था वो खा के। और उस लॉज की एक खासियत थी, उस लॉज के ऊपर नहीं देख सकते अपने, अगर उसके ऊपर देखते थे तो बहुत ही डरावना एटमॉस्फेयर रहता था, क्योंकि वो देसी जो सिस्टम से घर बनते उस टाइप से वो बनाई हुई थी और कई सारे स्पाइडर और ये सब, और वो देसी तरीके से जो लकड़ियाँ वगैरह जला के जो रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो बनाते थे। तो पूरी छत ब्लैक रहती थी। तो हम वो हिम्मत नहीं करते थे और सिर्फ पूरा थक के जाते थे, तो उस खाने का मजा लेके लुत्फ उठाते रहते थे और घूमते रहते थे। ये बनारस का है, ये मदारी जो होते हैं खेल करते हैं उनका, ये जो बार बार ये लोग दिन में कई बार वो काजल लगाते थे। अच्छा। उनकी आंखें एकदम स्ट्राइकिंग थी। तो इस पूरे एग्जीबिशन में एक ही ऐसा है जो टाइट पोर्ट्रेट टाइप का है। हाँ। अदरवाइज एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि उसमें एनवायरमेंट के बिना पोर्ट्रेट अधूरा है। तो ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि पोर्ट्रेट मतलब ओनली फेसेस, ये नहीं है। तो ये एग्जीबिशन का दिखाने का और मेरा सोचने का भी तरीका ये है कि एग्जीबिशन पोर्ट्रेट इज नॉट ऑल अबाउट चेहरे फेसेस, इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग है। जो एक टिपिकल व्याख्या है उसको तोड़कर एक नई डेफिनेशन बन गई। ये भी ग्रुप है मदारी कम्युनिटी का। ओके। ये बनारस का है, जिसमें शंकर भगवान तबला है, थोड़ा सटायर भी है उसमें, ह्यूमर है जी। और पूरा सिटी भी दिखता है, गंगा जी भी है। उस तरह का जो मैंने बोला ना एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट इस तरह से। और ये बैकड्रॉप का मज़ा है। बैकड्रॉप मेरे एक दोस्त थे जो अभी नहीं रहे, तो उनके पास मैंने पुराने ज़माने में जो पोस्टर आते थे ना जी। फिल्म के बैनर, वो मैंने बैकड्रॉप बनवाए थे उनके पास। अच्छा। और मैं एक्सपेरिमेंट और जस्ट एक कभी मूड होता है ना इस तरह से, तो मैं कच्छ ले गया था। ओके। और ऐसे कैरेक्टर को फिर मैंने गांव में जाके ढूंढा और उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इस तरह से क्या पोर्ट्रेट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आपकी फेवरेट इमेजेस में से है? ये भी अगेन लुडिया की है। हाँ। जैसे अपनी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि कई ऐसी जगहें होती हैं हाँ। जो डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली आप चाहो या ना चाहो, लेकिन वो आपके जहन के अंदर रहती है और वो आपकी लाइफस्टाइल में भी दिखती है। हाँ। वैसा ही नाता आपका लुडिया के साथ है रहा। बिल्कुल। लुडिया के ही शायद बहुत से ऐसे पल हैं जो हम लोगों ने साथ बिताए हैं। देशर भाई को याद करना पड़ेगा, क्योंकि
वो एक ऐसे इंसान थे कि जिसकी जोड़ के रखा हाँ सही। जोड़ के रखा। और आज जो विवेक भाई की वजह से आफ्टर अर्थक्वेक लुडिया को शायद सही मायने में एक्सपोजर मिला, सही मायने में बेनिफिट मिले। पूरा का पूरा गांव बिल्कुल पास में वापस से बसाया गया, अच्छी तरह से बसाया गया सारी फैसिलिटियों के साथ। तो लोग सोचते हैं ना कि फोटोग्राफर क्या कर सकता है या फोटोग्राफी से क्या होता है। फोटोग्राफी के बहुत बड़े इम्पैक्ट होते हैं और फोटोग्राफर बहुत कुछ कर सकता है। ये आगे की वो रामनामी जी राजस्थान, इसमें फेस नहीं है पर यू कैन रीड हर फेस, ऐसा है। इसमें भी फेस नहीं है। हाँ, ये इमेज इसके बारे में सुरेश भाई के साथ हाँ। अच्छा टॉक रहा। हाँ कल मैं जैसे आया तो आप किसी कंपटीशन में जजिंग करने के लिए गए हुए थे और सुरेश भाई ने अपनी फेवरेट 2 इमेजेस दिखाई। बोला ये एक इमेज मतलब मुझे इतनी अपील करती है, मतलब हम सब राजस्थान से बिलोंग करते हैं दोनों। तो उन्होंने बोला कि ये आप और मैं शायद बहुत बखूबी समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली वो वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ की क्या मेंटालिटी है। और बोला इसको पोर्ट्रेट कैटेगरी में लेना भी मतलब ये विवेक भाई जैसा इंसान ही ये क्लिक कर सकता है और वही हिम्मत कर सकता है, क्योंकि जो टिपिकल पोर्ट्रेट की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी उससे बियॉन्ड है, उससे बाहर का है इमेज है। ये कहाँ ली थी भाई आपने ये जयपुर के शायद पुष्कर की है। ओके। पुष्कर की है, शायद नहीं पुष्कर की है, पर फेस्टिवल टाइम की नहीं है पुष्कर वो। अच्छा। ऐसे यहाँ पे एक बैंक है अच्छा। पास में, तो बैंक के बगल में बिल्डिंग था, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। इस पूरे इस एरिया में मैंने जो सीरीज में काम करता हूँ, तो सीरीज के कुछ सिलेक्टेड इमेजेस मैंने रखे हैं। ओके। जैसे सर्कस का तो आपको पता ही है, जी, सर्कस जी, का तो बिल्कुल। एग्जीबिशन भी मैंने की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर्कस की सीरीज में से एक रखा है। बाकी ये सब जो इमेजेस है वो भवाई परंपरा जो हमारे गुजरात में है, सौराष्ट्र में खास करके, राइट। तो भवाई परंपरा के ऊपर मैं काम करता हूँ। जिसमें मेल कैरेक्टर है वो फीमेल का किरदार निभाते हैं। तो ये सब फोटोग्राफी पूरी सीरीज उसमें से है। धीरे धीरे अभी तो उसमें भी बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है, लुप्त हो लुप्त जाएगी अभी शायद 4-5 साल के बाद देखने को मिलेगी। सुरेश भाई ने मुझे इस इमेज के बारे में खास कहा हाँ। कि इस इमेज के बारे में जो आपने उनको डिस्क्राइब करा था, हाँ और अगेन जो अपनी पीछे टॉक हुई हाँ कि भाई फोटोग्राफी लाइन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या फोटोग्राफर हैं उनको रीडिंग अच्छा करना चाहिए। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि वो डिस्क्राइब आप मेरे पास भी करो इस इमेज के बारे में। इस इमेज में देखो, चाहे वो गरीब तो नहीं पर एवरेज जो उनका जो है वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप और उसमें हुए, फिर भी जो राजा जो होता है ना, राजा नहीं है फिर भी राजा पहन के जो बन जाते हैं, तो उसमें जो कैरेक्टर में पूरा समा जाते हैं। और जो ठस्सो जिसको बोलते हैं गुजराती में, जी ये ठस्सो बहुत सारा सामा देखा है। राइट। और ये भी एकदम बहुत अच्छा बैलेंस करता है साथ में। और उसकी आंखें, मूंछ, ईच एवरी पार्ट कुछ ना कुछ बोलता है, कहता है। उन्होंने इस इमेज में वो आपने उनसे कहा था ना कि जो झवेरचंद मेघानी हाँ, के साहित्य को जिसने दिल से पढ़ा हो वो इस इमेज को बहुत अच्छी तरह से रीड कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। कनेक्ट कर सकता है। सही। आई थिंक ये इंडोर जो मेले वगैरह में जो इंडोर स्टूडियो होते हैं उससे रिलेटेड नहीं, ये बवई का ही अच्छा। है, जो बवई का ही कैरेक्टर है। और Okay. बवई के जो कुछ खेल होते हैं इसमें लोग बैकड्रॉप बनाते हैं। अच्छा। और ये कैरेक्टर फिर आके प्ले करते हैं घूंघट बजा के, तो उसका है। पर ये जैसे एक स्त्री, एक फीमेल है, जैसे एक स्त्री पर्दा हो गई, उस टाइप का जो एकदम यस फीलिंग है ना। अगेन भवाई सीरीज है ये पूरी भवाई सीरीज है। अच्छा। ये भी जो देखो, ये इसमें दिखाया कि ये मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे, इसको देखो ये सेल्फी ले रहे हैं। हाँ, हाँ। ये भी इसलिए सिंबॉलिक इमेज है कि अब धीरे धीरे इस तरह जा रहा है। हाँ। और ये पूरा जो दक्ष है- की फेवरेट इमेज है। हाँ हाँ। और सुरेश भाई भी काफी हाँ। वो फिर पूछा था दक्ष से कि भाई आपको ये इमेज क्यों अच्छी लगी।
आप भी थोड़ा इस इमेज में दक्ष को डिस्क्राइब करें। बिल्कुल, देखो इतनी ग्रेस और सादगी है, तो ये सब पूरा वैभव होने के बाद भी सब चीज़ें हैं यहाँ पे, फिर भी वो जो सादगी दिखती है ना, ये सादगी इसमें बयां करती है। उनके चेहरा, उनके कपड़े। इलेवन टीम में 11 बटे मैक्सेस से अवार्ड विनर और हाँ, सेवा संस्था बहुत। अपना जो वो नवजीवन वाला फंक्शन रखा था उसमें भी शायद ये हाँ, वो उसकी थी हाँ। बिल्कुल। अभी गुजरात विद्यापीठ की चांसलर भी है। अच्छा, बहुत बड़े हुद्दे पे रही है, और जितने इस सीरीज में जितने भी पद्मश्री है, पद्म भूषण है, तो वो सब लोगों को मैंने काफ़ी सारे लोगों का प्रोफाइल किया है मैंने। ओके। अहमदाबाद जो गुजरातीज है, जो लोगों ने गुजरात को ऊपर ले जाने में जिनका योगदान रहा है, तो ये सब किए थे। उसमें सिलेक्ट करके कुछ चेहरे यहाँ पे रखे हुए हैं। गीत सेठी है जो बिलियर्ड चैंपियन। ये इमरान अली सारा भाई, वाह, तो सवाल ही नहीं। वेल नोन नेम। दोषी साहब, दिव्य दोषी। मुरारी बापू। Yes. मुरारी बापू की बहुत तस्वीरें मैंने देखी, पर ऐसी नहीं देखी। हाँ, नहीं, तो सही बात है। इसलिए मैंने उनको इस तस्वीर को पसंद किया कि उनके बिल्कुल उनकी कैरेक्टर और पूरा पढ़ा जाता है क्या है। कौमुदिनी लाखिया है, डांसर बहुत वेल नोन। अच्छा। पद्मश्री है, पद्म भूषण भी है। अच्छा, बहुत मल्लिका साराभाई है। कशाला भाई। तो एक गैलरी की भी अपनी लिमिटेशंस होती है, तो इस एक सेक्शन खाली रखा 4-5, तो एक आइडिया आ जाता है कि फोटोग्राफर प्रोफाइल, मतलब जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ की पोर्ट्रेट करते हैं, तो इस तरह से Yes. किया जाता है। तो खास करके जो नए काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्री सीरीज पे काम करते हैं, उनको एक आइडिया हो जाए इस तरह की इमेज ली जाती है, ली जानी चाहिए, इसलिए सेक्शन रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया। और ये मेरा एक सीरीज़ है, मेरा एक सब्जेक्ट है मैजिशियंस, Right. जो पंडाल लगा के करते हैं, अपना खेल करते हैं और आजीविका करते हैं। तो ये उसकी सीरीज़ में एक जादूगर है, लेडी जादूगर है, Okay. एलिसा करके। तो इस तरह से ये थोड़ा ड्रामेटिक है, उसको उसमें आपको कैरेक्टर भी और थोड़ा ह्यूमर, तो ये सब अच्छी लगेगा। ये सेम 2 कैरेक्टर है, जैसे ये खेल के पहले जो पूजा करते हैं, अच्छा, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म होता है वो इस तरह से। ये उसमें खेल में इस तरह से वो लोग परफॉर्म करते हैं। लोगों को सिर्फ सब्जेक्ट का आइडिया है, इस तरह के सब्जेक्ट पे भी काम किया जा सकता है और ऐसे इस तरह से किया जा सकता है, इसलिए ही ये सेक्शन रखा हुआ है। ओके। ये अहमदाबाद का 2 फोटोग्राफर है। ओके। ये भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही एनवायरमेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है बैकग्राउंड इसका। हाँ। ये बनारस में जो रामलीला होती है, अच्छा। वहाँ का है। बनारस की है, तीनों चारों बनारस की है। जो अखाड़ा मिरर में अच्छा है इमेज हाँ। बन रहा था। बाकी साधु मेरे फेवरेट विषय रहा ही है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। तो साधु का इमेज होना चाहिए। ये भी इमेज बहुत हाँ, प्यारी ये है। बहुत अच्छी है। इसमें फेस नहीं है, फिर भी आप रीड कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एग्जीबिशन, मतलब एक आइडिया आ जाए कि पोर्ट्रेट किसको बोलते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्री पोर्ट्रेट किया जाता है। सही। इस तरह से ये एग्जीबिशन। नहीं, बहुत ही अद्भुत थैंक यू। एक्सपीरियंस रहा हमारा। चलिए, अच्छा है।